activate your five senses. Five senses, how to activate? Just observe things what is there in front of you. आंखों के सामने जो भी चीज है उसको देखिए, जो भी आवाज है कानों से सुनना है, और टेस्ट, स्मेल, और जो भी आपकी फीलिंग्स आ रहे हैं, हवा का, टेम्परेचर का, कपड़े का, चेयर का. So as you observe through your five senses, you stop thinking about the past or the future. You come to the present moment. उसके बाद focus on the silence that exists within you. दो शब्दों के बीच में साइलेंस है, उसको अनुभव करना है. And where do you feel the silence? You may reply in the chat box. Where do you feel the silence? Inside, within you, or outside? In or out? So if it is inside, does it exist all the time or sometime? Because all the feelings you experience in your brain through the brain activities inside. And why it is only sometime? Why not all the time? Why we don't feel this inner silence all the time? Why only sometime? Because our attention goes to the five senses, but the silence exists all the time. But only thing, we don't bring our attention to our silence. हमारा जो ध्यान है वो ध्यान को ध्यान करना हम हमेशा नहीं करते हैं. हमारा ध्यान पांच इंद्रियों के ऊपर बिजी रहते हैं. So now let us bring our attention to our own self. हम थोड़ा समय के लिए ध्यान को ध्यान करेंगे. मेरे ध्यान को ध्यान करूंगा. Be attentive on your attention. And when you become attentive to your attention, you become still. आपका शरीर है ना, हिलेगा नहीं. Because it is not focusing on the five senses, it comes to your own awareness. आप खुद को ध्यान करेंगे ना, आपका शरीर हिलेगा नहीं. And automatically you become detached from your five senses and the physical body. When your attention is on your own self or on your own attention, जब ध्यान को ध्यान करेंगे, आपके सारे पांच इंद्रियां शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं. और आपका शरीर भी हिलेगा नहीं. इसको पतंजलि क्या बताते हैं योग सूत्र में? सुख आसन, सुखासना, स्थिर सुखासना. तो हम क्या करते रहे, फिजिकल बॉडी को अलग अलग पोस्चर में रखकर स्थिर कराते हैं. वो भी एक तरीका है सेकेंडरी, बट द प्राइमरी इज आपकी मन स्थिर होना चाहिए. जब आपका मन स्थिर हो जाता है, आपके आसन भी स्थिर हो जाते हैं, हिलेगा नहीं. So feel the silence. As you feel the silence, you will feel your body has become still.
which is mentioned in Patanjali's Yoga Sutra, स्थिर सुख आसन. लेकिन बाहर क्या करते हैं, फिजिकल अलग अलग पोस्चर्स में स्थिर करना कोशिश करते हैं. लेकिन सच में क्या है, जैसे हमारा मन शांत हो जाता है, फोकस हो जाता है, स्थिर हो जाता है, 5 इंद्रियों से डिटैच होकर, तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है. और शरीर से भी डिटैच भी रहते हैं, इसके कारण सुख रहते हैं. इसको बोलते हैं सुखासन, स्थिर सुख आसन. Now I want you to observe your breathing by being detached from your 5 senses, detached from your physical body. Observe the breathing. As you observe, what is that you notice? आपकी ध्यान अभी आपके श्वास के ऊपर है. अभी ध्यान से देखना, आप श्वास लेते हो या श्वास अपने आप लेते हैं? Give me the answer in the chat box. You are breathing or breathing is taking place automatically? Which is right? Are you breathing or breathing is happening automatically? So if you observe closely, you will find the breathing is automatic. आपका प्राण शक्ति हवा को अंदर खींचता है. The pran, the energy of pran, it pulls air through your nose. And as it pulls, your belly becomes big like a balloon. And as it throws out the air, it goes inside. जैसे अपने आप श्वास लेते हैं, ध्यान से देखना, वो प्राण हवा को अंदर की श्वास द्वारा, और वो हवा को बाहर फोर्स में बाहर फेंक देते हैं. So can you observe this? The prana, आयम, इसको प्राणायाम कहते हैं, जो अपने आप श्वास होता है, चलता है. जैसे छोटे बच्चे को भी आप नोटिस करेंगे, वो श्वास लेते हैं ना अंदर, तो पेट ऊपर आ जाता है, फिर जैसे श्वास छोड़ता है पेट अंदर जाते हैं. तो ऐसा ही सच में प्राणायाम क्या है, ऐसा नहीं एक श्वास एक नासी से अंदर खींचेंगे, दूसरे से बाहर छोड़ेंगे, उसको प्राणायाम नहीं कहते हैं. आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे योगी लोगों को आप पूछेंगे, वो बताएंगे प्राणायाम नेचुरल होना चाहिए, वो फोर्स से नहीं करना है. जब आप इस राजयोग को करेंगे, जब आप 5 इंद्रियों से डिटैच होंगे, शरीर से डिटैच होंगे, ध्यान को ध्यान करेंगे, स्थिर रहेंगे, आपकी आसन स्थिर सुख आसन बन जाएंगे, तब प्राणायाम अपने आप होता है. और सारे दिन यही शांति से, प्रेम से, आनंद से आप हर कर्म करेंगे. आप नोटिस करेंगे आपका हवा, आपकी श्वास ऑटोमेटिक चलते रहता है, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है. वो एक सीक्वेंस में, एक फ्रीक्वेंसी, एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी में चलेगा, जिससे आपको अच्छा ऑक्सीजन भी मिलेगा शरीर को, साथ साथ प्राण शक्ति भी मिलता है. तो उससे आपका कंप्लीट शरीर में प्राण ऊर्जा का बैलेंस हो जाता है इस प्राणायाम से. वो दूसरे अलग अलग प्राणायाम नहीं, वो अनुलोम विलोम और एक को भी प्रेस करके एक ही सांस लेते हैं, ठीक है, उसका पर्पस अलग होगा. लेकिन सच में प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र में यम नियम
प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, धारण, ध्यान, समाधि। तो रियल प्राणायाम ये होता है। स्वामी विवेकानंद का ट्रांसलेशन देखेंगे, उसमें भी लिखा है, और परमहंस योगानंदा का भी आप देखेंगे, क्रिया योगा में भी इस प्राणायाम को बताता है। वो अनुलोम विलोम को नहीं बताते, उससे कभी है ना परेशान भी हो जाता है लोगों को। तो जो नेचुरल होता है ना, उससे सब बैलेंस रहता है। और हमारा आसन भी स्थिर होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं अलग अलग पोस्चर करके आप स्थिर करेंगे, वो महिलाएं नहीं कर सकते एक उम्र के ऊपर। फिर किस आसन का बात करेंगे? हमारा मन की, हमारी आत्मा की, हमारी बुद्धि की, वो आसन स्थिर होना चाहिए। ये समझ आया आपको? स्थिर सुख आसन और प्राणायाम। किसको समझ नहीं आया? ठीक है, आपका आइडियाज अलग अलग होगा, एटलीस्ट अभी जो मैं बताया वो समझ आया आपको, आपका भाई अनुभव कर सकता था। एक बार बता दीजिए ना, मैं थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन हुई तो मुझे समझ में नहीं आया। नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक। तो ये हो गया हमारा राजयोग। ठीक है, तो आज का यूनिट है, मैं शेयर करूंगा अभी। तो यूनिट 5 केस स्टडीज एंड सेशन रिव्यू। तो इसमें भी 2 टॉपिक है आपका। See, each unit have only 8 topics for you, that too under 2 different headings. So here under the case studies you have depression, alcoholic, suicidal, fear. See, these case studies, like in your practical book paper 6, आपको 5 केस स्टडी लिखना है। तो उसमें कोई भी लिख सकते हैं, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, अल्कोहलिक का, सुसाइडल का, फियर का, फोबिया का, या कोई डिजीज का, इंसोम्निया का, या कोई फिजिकल इलनेस का भी। मोस्टली यू फोकस ऑन द मेंटल इलनेस, एडिक्शन का, डिप्रेशन का, ड्रग अब्यूज का, ऐसा कुछ। तो इसमें केस स्टडी में क्या क्या लिखना है, ऐसा ही आपको लिखकर सैंपल दिया है। तो किसी को भी अभी भी कुछ डाउट है, ये प्री इंडक्शन क्या होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, तो आप ये यूनिट 5 देखेंगे, उसमें आपको सैंपल्स दिया है। आपका किताब में आफ्टर प्री इंडक्शन, आफ्टर mental status examination, you will compile the data and write it in the case study. So whatever you write in a proper way, in with full sentence, with more details, whatever information you gathered from pre-induction, gathered from mental status examination, you will fill it up in the case study. Case study is nothing new, but in this case study, one thing you are adding is you do the emotional healing, like what we did in the past 2-3 sessions. You identify the various emotions which people are experiencing, and you will write down which are the emotions you have released from the mind. Okay. So here, to retain the healing energy forever, follow-up has to be taken. So once you finish the pre-induction, mental status examination and case study, at the end of the case study, there is a column called follow-up, your feedback.
जब भी आपका सेशन पूरा होता है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन सेशन पूरा हो गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका जीवन में लेकर आने के लिए एटलीस्ट बाहर का लोग क्या कहते हैं, एटलीस्ट 21 डेज आपको कुछ भी करना पड़ेगा। जब तक 21 डेज आप करेंगे नहीं, वो आदत नहीं बनता है। तो कुछ टेक्निक आप उनको देंगे, सुबह उठने का, जल्दी सोने का, उनका सोच को कुछ परिवर्तन करने का, खाने का, एक्सरसाइज करने का, ये सारा आप उनको एक चार्ट बनाकर दे सकते हैं। देखो आपने काउंसलिंग करके जा रहा है, ये सब करने के लिए हम लोग बताया है, तो हफ्ते में एक बार हमको एक रिपोर्ट भेज दो, आप कैसे चल रहा है, या डेली रिपोर्ट ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार रिपोर्ट ले सकते हैं, एटलीस्ट 1 मंथ यू हैव टू डू द फॉलो अप। उससे क्या होगा, whatever you have taught, it will become a practice for them. So regular feedback follow-up is very much required in counseling sessions. Without follow-up, without feedback, you will not find any good result. Okay. So take feedback regularly, identify the thoughts which make them get back to their original disturbed state of mind. एक बार पूरा समझाएंगे, वो वापस उनका वही सिचुएशन में जाते हैं। See, when you talk to the people, you tell them you have to do this, but they go back to the same situation, same family, same environment. So naturally, the stimulus, we in psychology we call it a stimulus. Stimulus, what it is, like I'll give you one example for the stimulus. You can see the screen, classical conditioning of association learning. Okay, so here, see this dog, initially the saliva is coming out by giving the food. So when you give the food, it starts salivating. Then what happens, whenever we give the food, image not seen, I think now is it visible? Okay, so now what you do, initially when we gave the food, the saliva was coming. Then whenever we gave food, we associated a bell sound. So after few times, whenever you gave food to the dog, you were ringing a bell. खाने के साथ साथ एक बेल बजा रहे हैं आप। तो कुछ समय के बाद क्या हो गया, पहले उनको सलाइवा आ रहा था फूड देकर, अभी क्या है, विदाउट फूड जस्ट बेल बजाने से ही उनका पानी आ जाता है। तो इसको इट्स अ लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। रिसर्च क्या बताता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग थियरी। तो हम कैसे सीखते हैं, पहले एक चीज देकर सीखते हैं हम, और सेकंड टाइम वही अनुभव करते हैं, वही परेशान हो जाता है। लेकिन जो पहले बार परेशान हुआ वो नहीं था, लेकिन उस परेशान के साथ साथ कुछ सिंबल्स था, कुछ व्यक्ति था, कुछ ड्रेस था, कुछ कलर था, कुछ कमरा था, कुछ जगह था, उसको देखते हुए हमको आ जाता है वही फीलिंग्स, वही इमोशंस। इसको लर्निंग बाय एसोसिएशन कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके कारण जब काउंसलिंग पूरा हो जाता है, व्यक्ति वही जगह पे वापस जाते हैं, वही सिचुएशन पे जाते हैं, वही बात सुनने वाला है, तो
उनकी पुरानी आदत दोबारा आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। इसके लिए राजयोग यहाँ मदद करता है। राजयोग क्या है? अपने को, आत्मा को आप आत्मा है समझो। बाहर ये ज्ञान नहीं होता है। बाहर कितना भी काउंसलिंग करते हैं ना, लोग परेशान रहते हैं। क्यों? वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ राजयोग के कारण हमको समझ है, मैं आत्मा हूँ, मन से मैं अलग हो सकता हूँ, हाथ से जब चाहे मैं हाथ को उठाता हूँ, जब चाहे हाथ को छोड़ देता हूँ, जब चाहे मैं विचार करूंगा, जब चाहे मैं विचार को बंद करूंगा। तो ये मेरे कंट्रोल में होने के कारण, ये मेरे कंट्रोल में होने के कारण आई कैन इजिली कंट्रोल दीज एसोसिएशंस। जब भी खाना देते हैं, मेरे को पता है ये खाना है, मेरे को अभी उसको टेस्ट करना है। ऐसा नहीं बेल बजाते समय मेरे को है ना वो इमोशन आ जाएगा। जब मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो ऑटोमेटिक बहुत कुछ होता है। जब मेरे को मालूम है मैं ही हूँ, मैं ही सोचने वाला, मैं ही करने वाला, कराने वाला, फिर वो प्रॉब्लम्स कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसके लिए इस काउंसलिंग सेशन के साथ साथ आपको राजयोगा भी प्रैक्टिस करके समझना भी पड़ेगा और लोगों को समझाना भी पड़ेगा, जिससे उनका हीलिंग जल्दी हो जाता है, उनका काउंसलिंग से फायदा ज्यादा होता है। So identify the thoughts which make them get back to their original disturbed state of mind. ऐसा कौन सा विचार, कौन सा सिचुएशन, कौन सा जगह जिससे वो बार बार वही काम करते हैं, वही सोचते हैं, जिससे बार बार वही परेशान वापस आ जाता है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये फॉलो अप भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस फॉर मॉनिटरिंग एंड चेंज। टीच प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन व्हिच कैन एनहांस द फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। तो मैंने बोला ना, फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इज नथिंग बट इट कम्स थ्रू द प्राणा। जैसे हम थोड़े समय पहले प्रैक्टिस किया, जस्ट बिफोर वी आर प्रैक्टिसिंग द प्राणायाम। So the prana, it sucks inside. You receive the energy naturally. You are not taking the energy, you are receiving the energy. You can give different names for the prana. Prana is a cosmic energy. Prana is the sunlight. Prana is the energy you receive from the food. Prana is the God's power, God's energy. Prana is from the universe. You have different names for the prana. And it happens automatically. The life force, it is happening naturally. You are living a natural life. आपको कुछ मेहनत करना नहीं है, वो एनर्जी अंदर आ जाता है, जिससे आपका सारा शरीर अपने आप काम करते हैं उस प्राण शक्ति से। इसके लिए कई एग्जाम्पल है, वो जयपुर में भी है, और भी लोग था जो बिना खाना भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है, तो उनका ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो अपने वो प्राणायाम हम लोग प्रैक्टिस किए ना, वो एनर्जी से जिंदा रहते हैं। आपने कई ट्रीज का भी आप देखा होगा, उसको पानी रूट को देने का जरूरी नहीं है। इट विल ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो हम भी, जब हमारा दिमाग ज्यादा काम करने का जरूरी नहीं, फिजिकली ज्यादा एक्टिविटी नहीं चाहिए, तो दैट प्राण शक्ति इज मोर देन सफिशिएंट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। और ज्यादा सोचने के कारण, ज्यादा परेशान होने के कारण हमारा ब्रीथिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है, और साथ साथ मन में भी अलग अलग विचार होने के कारण, टेंशन होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण जो कॉस्मिक एनर्जी हमको मिलता है वो परेशान हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको वात पित्त कफ का डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, होम्योपैथी का भी वो एनर्जी डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, अकुपंक्चर अकुप्रेशर का एनर्जी डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। ये सारा होता है स्ट्रेस के कारण।
इवन फिजिकली भी हमारा एलोपैथी भी कहते हैं स्ट्रेस के कारण आप परेशान है, स्ट्रेस के कारण आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. So teach practices like meditation which can enhance the flow of cosmic energy and the attention over self, and check for the regular practice. Reinforcement of future visions and associated thinking, experience in the healing garden. जैसे हम उस दिन बताया था, हीलिंग करते समय रिलैक्स करके गार्डन में ले जाइए या कोई भी जगह पे. विजुअल नहीं कर सकता है तो भी नो प्रॉब्लम, आराम से बैठ के उनका फ्यूचर दिखा सकते हैं, उसको विजुअलाइज करा सकता है, जिससे उनका ब्रेन में न्यूरॉन्स में कुछ वो एक्टिविटीज होने के कारण वो उनका दोबारा करने में दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से ही. और साथ साथ यू हैव टू गिव मोटिवेशन. वो क्यों करेंगे? आपके पास आ गया, कोई बीमार है, ठीक करना है, लेकिन ठीक करके वो क्या करने वाला है? व्हाट इज हिज मोटिवेशन टू लिव ए लाइफ? क्यों वो अच्छा बनना है, क्यों उनको ठीक होना है? So you have to explain the motivational factors. कैसे आप खुद के लिए यूजफुल रहेंगे, दूसरों के लिए यूजफुल रहेंगे, उनका लाइफ में एक मीनिंग चाहिए. वेदर टू लिव, उनका फैमिली में कुछ पर्पस ढूंढना पड़ेगा या कुछ बाहर सोशली कुछ पर्पस ढूंढना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा. बचपन में जो इंटरेस्ट से काम कर रहा था वही इंटरेस्ट दोबारा कर सकते हैं. सो लोग कई बार क्या होता है, उनके पास धन रहता है, रहने का सब कुछ रहता है, कोई डिमांड नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं मैं क्यों जिंदा रहना है. लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो. कुछ एग्जाम्पल दिखाया था, अनीता मुरजानी, डॉक्टर बेन अलेक्जेंडर, नॉर्मन कसिन्स, ये सभी लोग क्यों मरने के बाद भी वापस आया या मरने तक जाकर वापस आया? हीलिंग ऑटोमेटिक हो गया. कहां से? क्योंकि वो प्राण शक्ति वो लोग कैसे खींचता है? जीने की इच्छा, मेरे को करना ही है. जब उतना इच्छा अंदर आ जाता है आपको जीने के लिए, आपको उतना अच्छा लग रहा है जीने का, आपको इतना अच्छा लग रहा है लोगों को मदद करने का, आपको इतना अच्छा लग रहा है खुद खुश रहने का या दूसरों को खुशी बांटने का, आपको इतना अच्छा लग रहा है कई, है ना, अच्छे अच्छे जीवन बनाने का, अच्छे ज्ञान सुनाते हुए, अच्छे काउंसलिंग कराते हुए, लोगों का मुंह में मुस्कुराहट देखते हुए आपको अच्छा लग रहा है. तो ये सारा चीज क्या है? ये राजयोगा में भी कहते हैं, आपकी दवा से भी दुआ आपको, है ना, दवा का काम करता है. कितना आप खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी बांटेंगे, तो वो दुआ जो मिलता है आपके पास, दूसरों के अंदर खुशी दिलाते हुए आपके अंदर कई सारा दुआ आ जाता है ना, वो दुआ है ना बहुत बड़ा दवा का काम करता है. मैं एक, है ना, सीक्रेट बताऊंगा आपको. आपको जिंदा रहना है, ज्यादा दूसरों को मदद करो, दूसरों से ब्लेसिंग ले लो, दूसरों को खुशी दिलाओ. उससे आपका तबीयत कभी खराब नहीं होगा. आपका कोई वकील को, कोर्ट केस को पैसा भेजने का नहीं पड़ेगा, और दूसरों के लिए भी आपका, है ना, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं रहेगा, खुद के लिए भी मेडिकल एक्सपेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आप उतना दवा जमा कर रहे हैं. मैं खुद, है ना, कई सारा जीवन में देखा है, जो डॉक्टर्स भी, है ना, सरप्राइज हो जाते हैं ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं. लेकिन आप उनका जीवन में देखेंगे, वो कई लोगों को मदद करता होगा, कई लोगों से वो दुआ लेता होगा, फिर उनको, है ना, कोई बीमारी भी, कोई कुछ बीमारी नहीं होता है. तो लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, जिससे खुद भी खुश रहेंगे, दूसरा भी खुश रहेंगे. वो उनका, है ना, एक ड्राइव. मोटिवेशनल फैक्टर साइकोलॉजी में भी कई रीजन बताता है. तो ऐसा मोटिवेशन जब तक एज अ काउंसलर आप उनको देंगे नहीं, फिर वो आप
कुछ भी करो, उनको आपने इमोशन को रिलीज कर दिया, हल्का करा दिया और काउंसलिंग कर दिया, सब कुछ बता दिया, राजयोगा कर सिखा दिया, लेकिन ये सब लेकर क्या करेंगे वो? अब सब ठीक कर दिया लेकिन वापस जाकर बैठ जाएंगे, मैं क्या करूं, कुछ करने का नहीं है, फिर वो वापस वही जगह पे। तो कितना भी हम करते हैं, अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए उनके अंदर एक, ये बोलते हैं ना, निराश वालों को आश का दीप जलाओ, आशाओं का दीप जलाना है हम। तो मरने वाला भी है ना जिंदा हो जाता है। कई सारे एग्जाम्पल है, मैं है ना आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो भेजते रहूंगा। ये रियल लाइफ है, रियल देखा हूं मैंने। जो डॉक्टर्स है ना, उनको भी आश्चर्य लगता है ये कैसे जिंदा रहता है। तो ये प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति है, ठीक है, जीने का, वो आपको कोई बीमारी आने नहीं देगा। तो ऐसा आपको फॉलो अप होना चाहिए जिससे वो व्यक्ति भी महसूस करे उनका जीवन है ना, जीना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ कुछ बायोफीडबैक का है। बायोफीडबैक क्या है? अभी डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, आप कोई भी कुछ प्रॉब्लम लेकर हॉस्पिटल जाओ, तुरंत वो बोलेंगे ये टेस्ट लो, ब्लड टेस्ट करो। तो ये टेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट माना हमको समझने का, फीडबैक, इसको भी फीडबैक कहेंगे। कोई बीमार है, पहले ब्लड टेस्ट कराया, कुछ बैक्टीरियाज है, वायरस है, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर दोबारा ब्लड टेस्ट कराएंगे जिससे हमको मालूम होगा वो बैक्टीरिया वायरस अभी है या खत्म हो गया। ऐसा ही आप भी काउंसलिंग जब करते हैं आपको भी फीडबैक लेना पड़ेगा, आपका काउंसलिंग कैसे हुआ। उसका कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मेंटल इंस्ट्रूमेंट्स है। फिजिकल बोले तो नॉर्मल आपका बीपी मेजर करते हैं, वो भी एक फीडबैक इंस्ट्रूमेंट है। आप मेडिटेशन करने के पहले आपको बीपी चेक किया, हाइपरटेंशन है, मेडिटेशन करने के बाद या एक हफ्ते के बाद दोबारा आप चेक कर रहे हैं बीपी, तो आपको समझ आ गया, अच्छा मैं ऐसा ऐसा किया, मेरा बीपी कंट्रोल में आ गया। शुगर, अभी इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है, शुगर चेक कर सकता है। ऐसा ही हॉस्पिटल्स में ईईजी होता है, हमारा ब्रेन का फ्रीक्वेंसी मेजर करने वाला, ईसीजी होता है, हार्ट का फ्रीक्वेंसी मेजर करने वाला। कभी गैल्वेनोमीटर होता है हमारा, जीएसआर मीटर्स, आपकी कितना रिलैक्स रहते हैं, आपका स्किन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जैसे कल बताया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, डिप्रेशन का स्केल है, एंगर का स्केल है, ये सारा आप जब मेडिटेशन सिखाएंगे या कुछ काउंसलिंग कराएंगे, कुछ भी करने के पहले एक टेस्ट लेना ही है आपको। या कोई फिजिकल बीमार वाला आ गया, डायबिटीज वाला आया, हाइपरटेंशन वाला आया, उनके पास ऑलरेडी मेडिकल रिपोर्ट होगा फाइल में, तो उसका कॉपी ले लो आप, ठीक है, आपका रिपोर्ट का कॉपी दे दो हम समझने के लिए। फिर उनको आप काउंसलिंग कराओ, मेडिटेशन कराओ, फिर कुछ समय के बाद वो खुद अपने आप, डॉक्टर बोला होगा कुछ बोलेंगे 2 महीना या 1 महीने के बाद उनको टेस्ट कराने के लिए, तो वो टेस्ट का भी रिपोर्ट ले लो आप, तो आपको कंपैरिजन होगा पहले क्या था अभी क्या है। तो ये है ना, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है आपका, जिससे आप 10 व्यक्ति को ऐसा किया, आप तुरंत एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, देखो मैं इस बीमारी का ऐसा ऐसा किया, इस पहले का इनका रिजल्ट ए था, बाद में ए हो गया। और साथ साथ ये लिख सकते हैं वो बीच में क्या क्या मेडिसिन ले रहा था, ये क्या है। रिसर्च माना ऐसा नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही होगा। रिसर्च माना आपने जो भी ऑब्जर्व किया उसका रिजल्ट ए है, और उसके ऊपर आगे लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो रिसर्च माना एक सिस्टमेटिक आपने किया, पहले का रिजल्ट ले लिया, बाद में का रिजल्ट लिया, और बीच में आपने कुछ इंटरवेंशन दिया, मेडिटेशन सिखाया, काउंसलिंग कराया, उनका फीडबैक लिया, वो भी एक डाटा हो गया आपका। सो बायो फीडबैक अलग अलग तरीके का है। आपका दिनचर्या का भी रिपोर्ट ले रहे हैं, वो भी एक फीडबैक है। बायो फीडबैक माना फिजिकली,
फिजिकली बीपी चेक कर सकते हैं, पल्स चेक कर सकते हैं, शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, ऐसा कई सारा चीज चेक कर सकते हैं आप फिजिकली भी, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो these biofeedbacks are also very important in your case study. Fine. तो और एक मैं बताऊंगा, सी ये सब चीज में आपको एक चीज याद रखना, रिलैक्सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जब व्यक्ति आपके पास आते हैं, आपको वो आपकी बात नहीं सुनेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। मैं जब ग्लोबल हॉस्पिटल में था, एक हार्ट पेशेंट था, तो आई वॉज अ काउंसलर देयर। तो डॉक्टर ने मेरे को बताया उनको थोड़ा काउंसलिंग करो। मैं बोला ठीक है, मैं गया उधर, लेकिन वो व्यक्ति उतना गुस्से वाला था, वो नहीं चाहते मेरा बात सुनने का। वो बोला कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रहा था, बिकॉज ही वॉज लाइंग देयर। उनका वो आईवी फ्लूइड चल रहा था, तो और बेड में लेट रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, आप कुछ मत सुनो, मैं आपको थोड़ा ना सुलाऊंगा, रिलैक्स कराऊंगा, सिर्फ आप, मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते रहो बस। तो उनका दूसरा उठ के नहीं जा सकता क्योंकि वो आईवी फ्लूइड चल रहा है, तो वो लेटा था, मैं बैठ के, क्योंकि डॉक्टर ने बोला तो मेरे को करना है। तो मैं बोला ठीक है, वो गुस्सा भी करने दो, मैं करूंगा उनको रिलैक्सेशन करने, फिर तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा मैंने किया बोल के। तो मैंने जैसे उस दिन मैं आपको रिलैक्स कराया ना, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, हेड टू टो रिलैक्स कराया, फिर वो आदमी थोड़ा रिलैक्स हो गया था। फिर उनको मैंने बोला ठीक है, आप और थोड़ा डीपनिंग किया, जैसे मैं आपको डीपनिंग और स्टेप्स के द्वारा दिखाया, तो और गहरा रिलैक्सेशन हो गया, शरीर उतना है ना हिलता नहीं है। फिर उनको गार्डन में लेकर गया, उनसे मैं कुछ बात ही नहीं किया, उनको मैं बिठाया, परमात्मा से शक्ति लिया, अपने को आत्मा समझने के लिए मैं कराया, शरीर को हल्का बना दिया। फिर उनको वो ऐसे ही सो गया, मैं छोड़ के चले गया। फिर मैं बीच बीच में जा रहा था, तो मैं उसके बाद मैं चले गया। फिर बहुत दिन के बाद मैं जब उधर था, वो व्यक्ति आया, तो वो डिस्चार्ज होकर चले गया। फिर वो वापस आया ट्रीटमेंट के लिए, वो दवा चेंज करने का, ये दवा क्या, वो वीकली मंथली टेस्ट होता है ना, उसके लिए। फिर उन्होंने मेरे रूम में आया, काउंसलर रूम में आकर मेरे को मिला। वो बोला आप उस दिन कराया, मेरे को उतना अच्छा लगा, मेरे को और एक बार कराओ। फिर उधर एक इजी चेयर था, उधर बिठा कर दोबारा कराया उनको। फिर वो बोला ये चेयर में और भी बहुत अच्छा है, मेरे को ये चेयर भी है ना, कहाँ मिलेगा बता दो, मैं ऐसा एक चेयर भी ले लूंगा। तो वो व्यक्ति कितना गुस्से वाला था उस दिन, एक रिलैक्सेशन के बाद उनका चेहरा सब बदल गया, उनकी बोलने का तरीका, वो फिर मुस्कुराते रहता था। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये काउंसलिंग, क्योंकि जो लोग बड़े होता है, वो सोचते हैं हम जीवन में सब कुछ देख लिया, अभी नया क्या सीखेंगे आपसे। और जो उम्र वाला होता है, उनको कुछ बोलने का भी मन नहीं लगता है, आप कुछ भी बोलेंगे हाँ हाँ बोलेंगे, कुछ सुनेगा भाई भी नहीं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्सेशन करो। और इस रिलैक्सेशन में और बहुत कुछ चीज है, वो मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। सिर्फ ये नॉर्मल रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें बहुत कुछ होता है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेंटर बोल के, हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में, कल्पना बहन उसका इंचार्ज है। इसमें कई सारा पेशेंट का यही टेक्निक मैं जो आपको सिखा रहा है ना, यही टेक्निक यूज करके कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक, उसका हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैं ना आपको ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें कई चीज है,
थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, आपको इस रिलैक्सेशन के बारे में लास्ट में कुछ चीज है, मैं अभी नहीं बोलता हूँ, देखूंगा कौन उसको देखकर पूछने वाला है, ठीक है। तो इसका और बेनिफिट्स मैं बाद में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही आपको याद रखना, आप काउंसलिंग कुछ मत करो, सिर्फ रिलैक्सेशन करते चलो लोगों को, उससे भी है ना लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो आज आपका पेपर 5 यूनिट 5 जो हम आज से पहला दिन से 4 दिन देखा था, यूनिट 1 2 3 4, उसका ये एक सैंपल है कंपाइल करके, साथ साथ फीडबैक के बारे में कुछ लिखा है, और आपको अल्कोहलिक डिप्रेशन, ओके डिप्रेशन में जब बोलता है डिप्रेशन के बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा। I hope you all able to see this slide, 5 stages of loss. See, any person who is experiencing depression or sadness, they undergo these 5 stages. डिप्रेशन किसको होता है, उसका भी बड़ा कहानी है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ऐसा नहीं आप है ना सब कुछ एक साथ सीख लेंगे, जितना आप करेंगे करते जाएंगे बहुत कुछ आप सीखते जाएंगे। तो इनिशियली आप सोचा होगा ये बहुत बड़ा लग रहा है, प्री इंडक्शन है, ये है वो है, कुछ मत करो, आप सिर्फ रिलैक्सेशन करते जाओ लोगों को, उससे ही बहुत सीख जाएंगे आप। सिर्फ राजयोग का मेडिटेशन सिखाओ, उससे बहुत कुछ सीख जाएंगे। फिर धीरे धीरे काउंसलिंग का, कुछ लिखने का, ऐसा धीरे धीरे है ना हम सीखते हैं, करते करते सीखेंगे। तो ये डिप्रेशन का वन ऑफ द रीजन इज, हम बचपन से ही है ना कई बार लोगों का जीवन में फेलियर अनुभव किया होगा, इनफैक्ट फेलियर नहीं, शायद सच में फेलियर नहीं था, लेकिन वो महसूस किया और समझ लिया वो फेलियर है, तो एक बार किया, 2 बार किया, तीसरा बार वो सोचते हैं अच्छा हमेशा मैं फेलियर हूं, हमेशा फेल हो जाता है, तो उनका वो आश है ना निराश हो जाता है, द होप बिकम्स होपलेसनेस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु कम टू यू फॉर डिप्रेशन, दे हैव दिस पैटर्न, जैसे हम पहला यूनिट में देखा ना, पैटर्न आ जाता है, और एक पैटर्न ऑफ होपलेसनेस। तो अभी भी वो सोचते हैं ये नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं हो जाता है, तो उनका एक आदत बना दिया वो। हम किसी को ब्लेम करना नहीं है, उनको ऐसा ऐसा है, एवरीवन हैज देयर ओन वीकनेस सिचुएशन, मैंने बोला ना साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स, नहीं तो सब चाहते हैं खुश रहना है, फिर भी लोग दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी बायोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स। तो किसी को हम है ना गलत ऐसा नहीं बोल सकते, कितना भी बड़ा क्राइम क्रिमिनल हो। हम लोग अभी एक नया कोर्स कर रहा हूँ, जुवेनाइल जस्टिस जुवेनाइल साइकोलॉजी बोल के, उसमें यही कहते हैं कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो उसका भी एक कुछ कारण बनता है, कारण क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। मोस्टली वो बचपन में भी बच्चे लोग क्यों क्रिमिनल आदत होता है, उनका एक पॉवर्टी हो रिच हो उसका ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उस पॉवर्टी के साथ जब उनकी वातावरण भी ऐसा बन जाता है, तो हमेशा डेली देखते रहते हैं लोग है ना, वही काम करते हैं, गलत करते रहते हैं, तो उनको सही क्या है गलत क्या है वो मालूम ही नहीं होता है, फिर वो गलत करना शुरू करते हैं। तो वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जीन का भी जब वो एक्सप्रेस करते हैं उसका भी वातावरण चाहिए, इवन फॉर द जीन टू एक्सप्रेस certain disease at certain age, it needs the atmosphere, surrounding situations। तो ऐसा देखा जाए तो इंसान को हम ब्लेम नहीं कर सकते कहां भी,
तो यहाँ भी होपलेसनेस क्यों होता है, हम उनको ब्लेम करना नहीं है, ठीक है, होपलेसनेस उनका जीवन में ऐसा आदत बना दिया, लेकिन अभी उनको समझाना है, अभी सब कुछ बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। सो ये डिप्रेशन क्यों होता है? जॉब चले गया, कोविड में कभी लोग मर जाते हैं, जॉब चले जाता है, तो बहुत बड़ा जॉब में रहा। मेरे पास एक मैनेजर आया था, वो बहुत बड़ा काम कर रहा था, वो बहुत बड़ा मैनेजर था, अचानक उनको जॉब से निकाल दिया, तो उनको वाइफ भी लेकर आया उनको। तो क्या है उनका सिम्टम्स? वो डिनायल, पहले वन, फर्स्ट वन डिनाई, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है मेरा जॉब चले गया बोल के। वो वापस वही ऑफिस में जाते थे, वही सीट में बैठते थे, जैसे ऑफिस जाता था ऐसे ही जा रहे थे सुबह, और वहां ही सीट में बैठते थे। सो डिप्रेशन होने का पहला चीज क्या होता है? कोई भी लॉस हो गया, डिप्रेशन हो, लॉस हो, वरी हो, एंजाइटी हो, नॉट एंजाइटी, वरी, सैडनेस, लॉस, डिप्रेशन। सो पहला लोग डिनाई करते हैं, नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, कोई साथ मर गया, मोस्ट बिलव्ड वन, तो एक्सेप्ट करना दिक्कत हो जाता है, बोलते हैं नहीं वो जिंदा ही है, मेरे से बात कर रहे हो अभी, तो डिनाई। उसके बाद थोड़ा समय के बाद, एक दो महीने के बाद, कभी एक दो साल के बाद, फिर उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे को जॉब से निकाल दिया, क्यों मेरे को छोड़ के वो चले गया, क्यों ऐसा हुआ, गुस्सा, खुद के ऊपर गुस्सा, दूसरे के ऊपर गुस्सा, चिल्लाते हैं। फिर तीसरा दुखी हो जाता है, अच्छा चले गए, अभी मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता है, अकेले हो गया, सब फेलियर है, मेरे से नहीं होगा, तो डिप्रेशन। फिर क्या है, कुछ समय के बाद, ठीक है अभी जो हो गया, अभी क्या करना है, आगे क्या करूं? फिर कुछ समय के बाद सोचते रहते हैं, फिर कुछ समय के बाद ठीक है मैं ये करूं, अभी वो चले गया, अभी ये करेंगे, ऐसा जॉब करूंगा, ऐसा मैं जीवन जीऊंगा, ऐसा ही एक पर्पस ढूंढ लूंगा, मेरा जीवन में पर्पस नहीं था, मीनिंग नहीं था, ठीक है अभी एक नया बना दिया। तो कोई भी डिप्रेशन लेकर आपके पास आता है, आपको देखना है वो कहाँ है अभी, नंबर 1 में है, नंबर 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है। कई लोग इस डिप्रेशन से बाहर आने में एक दो महीना लगता है उनको, जिसको लॉजिकल माइंड थोड़ा शार्प है। इसका भी दो तरीके का लोग है, इसको हम सजेस्टिबिलिटी भी कहते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, फिजिकल इमोशनल कहते हैं, ऐसे दो तरीके का लोग होता है। आपका किताब में है, एक यूनिट में था, वो कौन सा किताब याद नहीं मेरे को। तो इसमें 50% लोग क्या करते हैं, ऐसे उनका लॉस हो गया, 2-3 महीने में वो बाहर आ जाता है, 5 जो स्टेज है ना क्रॉस करके आ जाता है, फिर वो नया जीवन शुरू हो जाता है उनका। लेकिन बाकी 50% लोग क्या करते हैं, इसमें ही बैठ जाते हैं, एक में ही बैठ जाते हैं, डिनाई करते रहते हैं 2-3 साल, और गुस्से में कुछ साल चलाते हैं, डिप्रेशन में चलाते हैं कुछ साल। तो एज अ काउंसलर आपको देखना है अभी ये कहाँ है, और वहां से आगे चलाना है, आगे उनको बढ़ाना है। इसके लिए हमारा कई सारा टेक्निक है ना, उनको गुस्सा करना है विजुअलाइज करके, जैसे मैंने आपको बोला वो सिचुएशन को याद करके आपका सारा इमोशंस वेंट आउट करो, उससे उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। उनके बॉस निकाल दिया, ठीक है बॉस को मन के आंखों में देखो, उनको चिल्लाओ मारो कुछ भी करो, गुस्सा को बाहर निकाल दो। फिर उसके बाद डिप्रेशन में जाएगा, अभी क्या करो, फिर उसका भी वो बचपन का आदत को है ना समझाना है, आपको क्यों ये होपलेसनेस आ रहा है, क्यों आप आगे बढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका प्लानिंग दे सकता है, उनका पास्ट का भी बिंदी लगा सकता है, जो भी हम लोग डिस्कस किया था, उनको फ्यूचर दिखा सकते हैं, फिर वो डिप्रेशन से बाहर आएंगे। फिर उनको फ्यूचर दिखाना है,
देखो आप ऐसा पढ़े हैं, ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकते, उनका एक प्लानिंग बना कर देना है, उनको मदद करना है आगे फ्यूचर बनाने में। फिर वो एक फाइनल सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है मैं अभी से ऐसा जीऊंगा। तो ये डिप्रेशन या लॉस का स्टेजेस है, उसको आइडेंटिफाई करके फिर वहां से हमको लोगों को आगे बढ़ाना है। कई बार एक सेशन में ये सारा ठीक हो जाता है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि आपकी एग्जांपल में सुसाइडल केस भी है। मैं जब माउंट आबू में था, वहाँ कॉलेज भी है, तो स्टूडेंट का है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, उनका कुछ इश्यूज हो जाता है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मेरे को हमेशा सुसाइड करने का विचार आ रहा है। देखिए सुसाइड माना बहुत डेंजरस चीज है, सुसाइडल थॉट्स माना, सुसाइडल आइडिएशन, आपको जितना जल्दी हो सके उसको निवारण करना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता नहीं है वो कब क्या करेंगे। लेकिन इसमें दो तरीके का लोग होता है, एक होता है ड्रग एडिक्ट, दूसरा होता है विदाउट एनी ड्रग एडिक्शन। इस दोनों में जो जिसको ड्रग एडिक्शन नहीं है उसको आपको बाहर निकलना बहुत आसान है। उसको मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो ये स्टूडेंट आया, उनको बोला, वो बोला कुछ महीने में मेरे को वही है, मन में परेशान है, सुसाइड करने का विचार आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उनको रिलैक्स कराया। आपको मैं हिप्नोथेरेपी का टेक्निक किया ना, वही किया। उनको रिलैक्स कराया, बहुत अच्छे से डीप में लेकर फिर उनको गार्डन में लेकर गया। फिर उनको, कई लोग औरा को देखता है, कई लोग नहीं देखते हैं, नो प्रॉब्लम, उनको आराम से बिठाकर बोलो आपको जो व्यक्ति से आपको अभी प्रॉब्लम हो रहा है उस व्यक्ति को देखो आंखों के सामने। तो देखा उन्होंने। मैं बोला जो भी आपकी मन की बात समझाओ और उनकी बात भी सुनो। तो दोनों बात चल रहा था कुछ 15 मिनट 20 मिनट। कई लोग है ना 3 घंटा 4 घंटा भी लेता है ऐसा बात करते हुए मन ही मन। हम सुनते नहीं, हम बोलते हैं आप मन ही मन बात करो, हमको कुछ सुनना नहीं है। तो कभी लोग चिल्लाएंगे रोएंगे, ऐसा चलता है ये सेशन। मैं 1000 के ऊपर सेशन किया है, अभी भी एक सेशन दूसरा सेशन जैसा मिला नहीं है। और एक एक सेशन है ना अलग अलग अनुभव होता है। मैं आपको एक एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, बहुत है ना मैजिकल भी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, और बहुत कुछ है। तो इस स्टूडेंट को भी मैं कराया, फिर उनको उनको फ्यूचर दिखाया, फ्यूचर को देखो। तो उन्होंने देखा फॉरेन में अच्छा काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको इच्छा पहले क्या था वो सब चल रहे हैं, कर रहे हैं। फिर वो सेशन के बाद वो खुद बता रहा था, देखिए मैंने इस कॉलेज में आया था बहुत बड़े बड़े है ना विचार लेकर, ड्रीम्स लेकर आया था, लेकिन आज मेरा सिचुएशन ऐसा था, मैं वो सब कुछ भूल गया। मैं क्यों इधर आया, क्या सोच के आया, पहले उनका मोटिवेशन क्या था, क्यों मैं कॉलेज में पढ़ना है, नर्सिंग पढ़ना है, नर्स बनना है, क्या करना है, क्या क्या सोच के आया, वो चलते चलते भूल जाते हैं इंसान। फिर वो उतना दुखी हो गया, सुसाइडल थॉट्स आ गया। अभी इस सेशन में क्या हुआ, उनका इमोशन सारा वेंट आउट हो गया, मन शांत हो गया। फिर उनको वो फ्यूचर देखने से उनका जो ड्रीम था, क्या करने के लिए मैंने आया, वो सारा होते हुए देखा था। तो वो जग गया। वो बोला देखो मैं क्या क्या सोच कर आया, मैं क्यों इसमें फंस गया, इतना दिन में क्यों परेशान, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा ड्रीम ही अलग था, उसको मैं बिल्कुल भूल गया था यहाँ कर। तो आपने बहुत अच्छा सेशन कराया मेरे को ना, पहले जैसा मेरे अंदर वो एंथुसियाज्म आ गया, हैप्पीनेस आ गया, आई हैव गॉट बैक माय है ना लॉस्ट हैप्पीनेस, जॉय, एंथुसियाज्म। फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स क्या था, वो उनकी दोस्त था जिसको भी परेशान है, वो बोले इनको भी कराओ आप। ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग मोर स्टूडेंट्स टू मी। फिर उनका फीडबैक भी लिया, वो बहुत अच्छा था। उस दिन से उनका है ना लाइफ ही पहले जैसा हो गया। इनिशियली हाउ वाज हिज इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस पढ़ने में, सीखने में, वही वापस आ गया उनको जीवन में। तो कई बार ये सेशन है ना, एक सेशन में सब कुछ बदल जाता है।
मेरे को कई इंसिडेंट्स है, कई सालों का है ना, थायराइड का प्रॉब्लम था, वो एक ही सेशन में ठीक हो जाता है, फिर वो यही काम में लग गया, यही हीलिंग करने का। तो ऐसा है ना, बहुत बहुत मैजिकल एक्सपीरियंसेस और भी बहुत है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। तो दूसरा है, द अदर केस इज द सुसाइडल थॉट्स विद एडिक्शन। जो लोग कुछ ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल, इवन अल्कोहल थोड़ा भी लेते हैं ना, हम इधर साउथ में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, वहां का बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट का क्लासेस चलता है, हम लोग सुनते हैं। वो लोग है ना, थोड़ा भी मना करते हैं अल्कोहल को। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, फॉरेन में ये कहते हैं थोड़े पियो, ये करो, अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है वो बोलते हैं लोग इतना ही शुरू करते हैं, फिर उनको कंट्रोल में ही नहीं आता है, फिर वो फंस जाता है उसमें, फिर वो कहाँ कहाँ ले चले जाता है, सुसाइड तक ले चले जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा पीऊंगा महीने में, धीरे से थोड़ा सा पीऊंगा, ऐसा काम नहीं करना है कभी भी। बहुत डेंजरस है, पॉइजन समझो उसको, अल्कोहल को। और जो एडिक्शन में है उनको इस सुसाइडल थॉट से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। आपने आप पढ़ा होगा, आपका ही स्टेट में है ना, आर्टिस्ट का भी हालत क्या हुआ आपको पता है। तो जो ड्रग्स लेते हैं ना, वो डिप्रेशन में रहते हैं, उनके मन वहां ही रह जाता है, वो वही डिप्रेशन में ही रहते हैं, बाहर निकालना उनको बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उनके लिए क्या करना है, पहले डी एडिक्शन करना पड़ेगा, उनको डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, उसका मैनेज करना है, डी एडिक्शन होना है, साथ साथ आपका काउंसलिंग चलेंगे। तो सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, ऐसा लोग आते हैं आपके पास, आपको ये देखना है एडिक्शन के साथ या बिना एडिक्शन। विदाउट एडिक्शन इट इज इजी, बट विथ एडिक्शन यू हैव टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट। साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट भी चाहिए, डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट चाहिए, और उनका अल्कोहल ये सब कंट्रोल करने का भी तरीका सिखाना है। थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उनको, ज्यादा फीडबैक लेना पड़ेगा, ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो आई थिंक टुडे इट इज इनफ। Any questions if you have, you may please ask me. Any questions? रिलैक्सेशन टेक्निक जरा हमको थोड़ा और थोड़ा बताना है। वो पहला दिन मैंने कराया ना, पहला फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। अच्छा, उसका तो और थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको मिल जाएंगे वो ऑडियो ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस है? पर्सन डिप्रेशन में है, हम कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए मैंने वो 5 स्टेजेस दिखाया ना। पहले डिनाई करते हैं, पहला चीज उनको एक लॉस हो गया होगा, कोई मर गया होगा या कोई जॉब छूट गया होगा जिससे वो परेशान रहते हैं, तो दैट इटसेल्फ ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। फिर उसके बाद सेकंड, उसको मना करते हैं, मेरे साथ नहीं हुआ। दूसरा, वो 5 स्टेजेस मैंने लिखा है ना, उसको देखकर ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या होता है डिप्रेशन है। तो जो नॉर्मल काम करते हैं ना वो नहीं होगा, ठीक है, एक दिन हम दुख रहता है, 2 दिन रहते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते तक चलता है, 1 महीने तक चलता है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हाँ हाँ, अभी हम डिप्रेशन में या कोई व्यक्ति की अगर समझो कुछ मेडिसिन चल रहा है, ओके, तो और हम उसका काउंसलिंग कर रहे हैं, और बाद में उसको अच्छा लगा और फिर उसने मेडिसिन खाना ही बंद कर दिया, तो मतलब वो कहता है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और फिर बाद में क्या हो देखिए जाता है? ऐसा है, कभी भी आप किसी को दवा बंद करने के लिए नहीं बोलना है, उनको बोलना है ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आप जहां से दवा ले रहे हैं उस साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, उनको बता दो मैं ऐसा ऐसा मेरा जीवन का लाइफस्टाइल चेंज किया, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, मेडिटेशन कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, तो आप दवा कम करो। तो साइकेट्रिस्ट वो उनकी तरफ से चेक करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे सब कुछ चल रहा है ठीक है, तो वो दवा को धीरे 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 कम करेंगे, एकदम कम नहीं करेगा वो।
क्योंकि उस दवा क्या करते हैं, हमारा कुछ हार्मोन कमी के कारण दिमाग में कुछ हार्मोन का कमी होता है ना, उसको बैलेंस करने के लिए वो दवा खा रहे हैं। तो अचानक वो बंद हो जाएंगे, उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। अचानक वो बंद हो जाएंगे, फिर वो पहले जैसा हो जाता है। तो कभी भी मेडिसिन को हम बंद करने के लिए नहीं बोलेंगे। मेडिसिन भी छोटा छोटा मेडिसिन कई बार 5 साल खाते हैं, 10 साल लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका जो हार्मोन बनता है वो नहीं बनता है, वो इस मेडिसिन से उनको मदद मिलता है। लेकिन उनको लग रहा है नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ठीक है, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ, बताओ, थोड़ा थोड़ा कम करो, डॉक्टर कर देंगे। वो देखेंगे धीरे धीरे कम करेंगे। आपका उसका विथड्रॉयल सिम्टम्स कुछ ज्यादा हो रहा है तो बढ़ा देंगे, नहीं तो वो देखेंगे नहीं कितना मैं कम कर रहा हूँ, आपका सब कुछ ठीक है, तो बंद करा देंगे पूरा। ठीक है। ठीक है। जी हेलो सर। भाई। यस जी, बताइए। हेलो हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, हाँ, बताइए। आवाज सुने आ रही है। कोई डिप्रेशन में है, वो अपन पहचानते हैं उनके बिहेवियर से ओके, कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है, लेकिन वो मानता नहीं देखिए और इसमें ये एक चीज उसका हमको अग्रेसिव है। समझना है, किसी को एज अ काउंसलर हम नहीं बोल सकते हैं आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको ये है वो है। ये है ना एक तरीके का लेबलिंग कहते हैं। तो एज अ काउंसलर वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीवन यू हैव डिप्रेशन एंजाइटी। हाँ, नहीं सर, लेकिन मुझे उसके क्या लिए हम बोलना क्या था। करेंगे, नहीं मैं पूरा कर दूंगा। आपके सामने कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकियाट्रिस्ट होता है। वो लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने असेसमेंट बताया, ये प्रॉपर असेसमेंट वो लोग करेंगे। हम लोग क्या है, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ट्रीटमेंट काउंसलिंग कर रहा हूँ, उसका पहला स्टेज क्या है, बाद में क्या है, वो समझने के लिए हम लोग कुछ डिप्रेशन स्केल जो मैंने भी आपको लिंक दिया था उससे कुछ डाटा गैदर कर रहे हैं। लेकिन उससे हम किसी को नहीं बोलेंगे आपको ये ज्यादा है वो ज्यादा है बोल के। उसको हाँ, प्रॉपरली नहीं, साइकियाट्रिस्ट अपन ने वो बताएंगे। बोलने मैं का नहीं है नहीं, उनको। एक मैं थोड़ा पूरा हम्म, करूंगा। तो ओके। उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट प्रॉपर टेस्ट करके दे आर ऑथराइज टू कंफर्म दे हैव डिप्रेशन और एंजाइटी। हम लोग है ना, हमको ज्यादा देखना नहीं उनका डिप्रेशन है एंजाइटी है, हम समझ लिया ठीक है उनको ऐसा कुछ बात है, हम जनरल बात बताएंगे, लाइफस्टाइल चेंज कराएंगे, कुछ मेडिटेशन सिखाएंगे, और कुछ मॉनिटर करेंगे, उनको अच्छी चीज बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे। हमको ये है ना इम्पोर्टेंट नहीं है उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डायबिटीज है, कैंसर है, ये हमारा काम नहीं है। ओके और ओके दूसरा, ओके। सारा ये डिप्रेशन का ये सबका एक साइकोलॉजी के लिए डीएसएम बोल के एक मैनुअल है, और आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस डब्ल्यूएचओ का भी है, और ये डायग्नोस्टिक मैनुअल भी है डीएसएम। अभी 5 उसका वर्जन 5 चल रहा है, आपको गूगल से भी मिल जाएंगे वो। उसमें डिप्रेशन माना क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, ऐसा ऐसा है। लेकिन मैंने देखा है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हम ये साइकेट्रिस्ट लोगों को मिलते हैं, वो लोग बताता है इवन वो आईसीडी डीएसएम मैनुअल वो है ना अप्रोक्सीमेट है, वो देखकर हम किसी को नहीं बोलेंगे आपको डिप्रेशन है। तो प्रैक्टिकल जो करते हैं ना उनका मेजरमेंट अलग है, वो देखेंगे। अभी एडीएचडी है बच्चों को, तो एटलीस्ट 1 साल वो ऐसा उनका व्यवहार होना चाहिए, और ऐसा सिमिलर सिचुएशन में ऐसा वो बार बार ऐसा सिमिलर सिचुएशन में 2-3 सिचुएशन में वो ऐसा व्यवहार करता है। ऐसा है ना, अलग अलग तरीके से एंगल से एनालाइज करके फिर उनको बताते हैं ये हो सकता है। फिर भी वो है ना फाइनल नहीं करते हैं, क्योंकि हर हाँ, इंसान का लाइफस्टाइल सब कुछ अलग है। हम किसी को नहीं बोलेंगे आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको ये है वो है बोल के। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। अजीम सर, वो जो प्रैक्टिकल का बुक है, यस। तो उसमें जो प्री इंडक्शन का दिया गया है, तो इसमें फिजिकल, मेंटल, और जो सेकंड पॉइंट है इसमें लेटर चाइल्डहुड, प्री प्यूबर्टी थ्रू एडोलसेंस है।
तो इसमें जो बी पॉइंट में विथ पेरेंट्स ये जो इंटरेक्शन करना है मना उनके साथ केस के बारे में। या बड़े लोग हैं तो उन खुद से पूछ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो फिर पेरेंट्स से ही पूछ के लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स से पूछ के लिखना पड़ेगा। तो जैसे मेंटल प्रॉब्लम में हमने ये लिख दिया है कि उनको जैसे सोने के लिए जाते हैं तो जल्दी नींद नहीं आती है। ओके तो हम ये पूछ सकते हैं कि उनको ऐसा इंटरेक्शन कर सकते हैं कि जैसे कि आपको ये पता है क्या कि ये समस्या जो है आपके बेटे को कब से है, और आपके घर का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ये कठोर है, नम्र है, शिस्तप्रिय, जैसे पक्षपातपूर्ण। तो इस तरह से क्वेश्चन जैसे लिखना है इसीलिए पूछ रहे सर। तो इस तरह से कर सकते हैं, और कुछ जैसे करेक्शन देना चाहेंगे आप? से हम कोई भी चीज है ना डायरेक्ट उनको, ये भी है ना, हम धीरे धीरे काउंसलिंग में देखेंगे, हम किसी को है ना डायरेक्ट नहीं बताएंगे इस वजह के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है। ये भी है ना, थोड़ा आपको इनडायरेक्टली बोलना पड़ेगा। इसके लिए काउंसलिंग में क्या होता है, पहले हम सुनेंगे, फिर हाँ। धीरे धीरे जैसे रैपो बिल्डअप हो गया, फिर धीरे धीरे बोलेंगे देखो आप ये कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा गलत है, उसको कॉन्फ्रंट करेंगे। फिर वो तो ये स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग में मे बी हमारा नेक्स्ट किताब में ये सारा देखेंगे। तो आप इंफॉर्मेशन अभी है ना, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा नहीं बोलेंगे इसके कारण ये है। जी सर। थोड़ा सोच समझ कर है ना, वी ऑल्सो एज अ काउंसलर वी ऑल्सो हैव टू सी, वी डोंट ब्लेम एनीवन। ओके सर। और ऐसा बोलना है उनको लगना चाहिए अच्छा ये भी हो सकता है, वो ओके धीरे सर। धीरे सीख जाएंगे आप। हाँ, ठीक है सर, बट वो जो प्रैक्टिकल बुक में लिखना है तो इस तरह से ऐसे फिलअप करना है क्या ऐसे? हाँ, आपने किसी का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इनिशियल लिखेंगे ना तो सब कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छा। किसी को मालूम होगा आपने किसके बारे में लिखा बोल के। हाँ हाँ। ओके तो सर। पूछते समय सब कुछ पूछ कर लिख सकते हैं। ओके सर। इसके लिए थैंक यू। आपका किताब में किसी में नाम नहीं होगा, इनिशियल लिखा होगा। हाँ सर। सर ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट मंडे रहेगा। यस। तो अभी हमारे पास कितना है, सैटरडे संडे में 2 दिन है। हाँ तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट मतलब 1-2 केसेस तो करना चाहिए ना। तो क्योंकि ये फिर से रिपीटेशन अभी नेक्स्ट इसमें तो अलग ही रहेगा। फिर ये आपने जो प्रैक्टिकल और ये काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ दोनों भी किताबें आपने एक साथ मतलब अच्छी तरीके से समझाया है क्या है, तो एटलीस्ट उसको स्टार्ट तो कर सकते हैं ना अभी। एटलीस्ट ये केस भी करेंगे, अच्छा है ना, आपको याद रहेगा क्या क्या हम डिस्कस किया एक बोल तो के। केस हमने खुद का किया है। हाँ आपने बोला था सेल्फ का, सही है, तो ये किया है। तो अभी नेक्स्ट एक केस कर और एक सकते हैं। करे तो अच्छा है। ओके। सर इसका सैंपल मिलेगा सर एखादा, सैंपल प्री इंडक्शन का, स्टडी का? ये यूनिट 5 में पूरा है आपका सैंपल्स, डिप्रेशन का है, सुसाइडल का है, अल्कोहल का है। क्योंकि प्री इंडक्शन में जो सेकंड में जो ABCDEFGH लिखा है, हाँ, पॉइंट है। इस पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स है ना, उसका सैंपल चाहिए। वो कुछ भरने का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर वो। देखिए आप कोशिश ऐसा करा कर लो, अभी यूनिट 5 में हम लोग कंप्लीट केस स्टडी लिखा है ना, उस केस स्टडी में जो है उसका ही प्री इंडक्शन में आप देखेंगे। प्री बुक में इंडक्शन क्या है, जैसे आप किसी से पूछा, उन्होंने बोलते हुए आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं ना, 1-2 पॉइंट लिखेंगे, फिर उसको आराम से बैठ के आप केस स्टडी में कहानी के रूप में लिखेंगे। तो ये केस स्टडी प्री इंडक्शन दोनों एक ही है। केस स्टडी जो प्री इंडक्शन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आप करते हैं ना, वही चीज केस स्टडी में आप लिखेंगे। केस स्टडी कुछ नया नहीं है, लेकिन केस स्टडी में कुछ एडिशन क्या है, आप काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, उसका भी आप ऐड कर देंगे। अदरवाइज व्हाट डाटा यू गैदर इन प्री इंडक्शन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसका ही थोड़ा बड़ा सेंटेंस के रूप में आप फिलअप करेंगे केस स्टडी में। इसमें और एक पेरेंट्स है के साथ कि इसमें और एक है नंद किशोर भाई, इसमें और एक है कि अगर आपका कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिनका मीडियम मराठी है और उनको किताबें इंग्लिश में आई है, अभी मराठी मीडियम तो नेक्स्ट ईयर में अवेलेबल होगी,
पर अभी अगर आपको लिखने में इंग्लिश लिखने में आपको दिक्कत आती है, किसी स्टूडेंट्स को या इस ग्रुप में किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आती है, तो वो हिंदी मराठी में लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स का बिहेवियर पैटर्न लिख सकते हैं। इसमें और एक है कि हम आपको एक हिंदी मीडियम का ट्रांसलेशन वाला आपको किताब भेज देंगे, तो उस अनुसार वो क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर, मतलब प्रॉपर आंसर्स आप लिख सकते हो। वो हम यहाँ से नोडल सेंटर से आपको भेज देंगे आपको, तो आपको और थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। हमने ग्रुप में मैसेज भी डाला है कि जिसका स्टूडेंट्स का मराठी मीडियम है वो इसमें अपना नाम और स्टडी सेंटर का नाम भेज देना, उस हिसाब से हम कुछ आगे के लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। वो जो सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन में, उसमें विद पेरेंट्स का इंटरेक्शन बताया सर ना, विद पेरेंट्स, विद रिलेटिव्स, विद स्कूल फ्रेंड्स, उनके साथ का इंटरेक्शन बताना है। हाँ, कुछ लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मुश्किल नहीं। अभी बच्चे लोगों को बड़ों का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, बड़े से बात करें तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो डजंट मैटर। आप ये है ना, आप शुरू कर रहे हैं ना,